ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل۔ خبر و نظر چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سینئر صحافی شمیم جراج پوری کی یہ رپورٹ۔ سماجی انصاف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آدرش وحدت اسلامی ہند یو پی کے ذریعے ربیع الاول ماہ کی مناسبت سے سیرت مہم منائی جا رہی ہے، جس کا آغاز 24 اگست سے ہو گیا ہے اور انشاءاللہ 23 ستمبر تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اس مہم کے تحت جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پروگرام اور کارنر میٹس، پرسنل ملاقاتیں، ٹیچرز، ایڈوکیٹس، ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس میٹ کے ذریعے انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس کو پورے انسانیت میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک علاقے، کسی ایک دین، کسی ایک نسل یا کسی ایک برادری کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ اور صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے وہ، بلکہ وہ دنیا میں جو انبیاء کا سلسلہ قائم تھا اس سلسلے کے آخری کڑی تھے، اور انہوں نے تمام انسانیت کو اللہ رب العزت سے جوڑنے، بندوں کی غلامی سے نکالنے اور اللہ رب العزت کی غلامی میں لانے کا جو کام کیا تھا، اس کام کو آگے بڑھانے کا بیڑا ان کی امت کے ذمے ہے، اور اسی کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے تحت ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی اعظم گڑھ ڈویژن میں آج پہلا پروگرام شاہپور گاؤں میں منعقد ہوا، جہاں ندیم بھائی کی گفتگو تقریباً 30 سے 40 لوگوں کے بیچ میں ہوئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہاں کے پاس ایک گاؤں جلو پور چکھیا میں راجیش یادو فوڈ انسپیکٹر صاحب کے گھر پہ پہنچا، جہاں تقریباً 15 یادو برادری کے لوگوں کے بیچ میں ڈاکٹر کمال الدین صاحب اور ماسٹر ندیم صاحب نے اپنی باتیں رکھیں۔ الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور دوبارہ ملنے کی بات کہی۔ اس کے بعد ملت نگر کی مسجد میں ظہر کی نماز کے فوراً بعد ندیم بھائی کا خطاب ہوا، اور پھر عصر کی نماز کے فوراً بعد اعظم گڑھ شہر کے قلعہ روڈ پر کارنر میٹ ہوئی، جہاں ڈاکٹر کمال الدین صاحب اور ماسٹر ندیم صاحب نے عوام کے بیچ میں خطاب کیا۔ یہ خطاب عام بہت مؤثر رہا، بالکل نئے انداز میں لوگوں نے پسند کیا۔ اور پھر آج کا آخری پروگرام نماز مغرب کے فوراً بعد شیخ پورہ کی جامع مسجد میں منعقد ہوا، جہاں ڈاکٹر کمال الدین صاحب نے تعارفی کلمات کہے اور ماسٹر ندیم صاحب نے مہم کے عنوان کے تحت گفتگو کی۔ تقریباً 30 سے 40 لوگ موجود رہے۔ تمام جگہوں پہ جو پروگرام ہوئے وہ سب مہم کے طے شدہ عنوان کے تحت ہوئے۔ پرنٹنگ مٹیریل کوئی نہیں تھا، اس لیے تقریم انسانیت مہم کے بچے ہوئے فولڈر کو لوگوں کے بیچ میں تقسیم کیا گیا۔ الحمدللہ آج کے تمام پروگرام بہت اچھے ڈھنگ سے اور بالکل طے شدہ وقت کے ساتھ منعقد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کرے اور ہماری توانائیوں کو برقرار رکھے۔ پروگرام کے آرگنائزر فیضان احمد نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ ماسٹر طریق احمد کی دعا پر پروگرام کا اختتام ہوا۔ سینئر صحافی شمیم جراج پوری سے گفتگو کرتے ہوئے ماسٹر ندیم احمد نے اپنے جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، آئیے ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ندیم احمد صاحب۔ ندیم صاحب، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ مہم ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں منائی جا رہی ہے۔ یہ وحدت اسلامی ہند جو پورے ہندوستان کی ایک آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے ہے، اور یہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے ہماری آرگنائزیشن وحدت اسلامی ہند نے فیصلہ لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ٹیچنگز ہیں، جو انہوں نے انسانیت اور مانوتا کو دیا ہے، وہ لوگوں کو بتایا جائے، مسلمانوں کو بھی بتایا جائے، غیر مسلموں کو بھی بتایا جائے، تاکہ جو لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کو صحیح سے ان کا گیان اور علم ہو سکے۔ اس وجہ سے ہم جگہ جگہ یہ کارکرم اور پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں انسانوں کے لیے، دنیا میں انسان جب ہے
उसको दो राइट्स हैं जो दोनों देना है। एक तो अल्लाह के हुकूक हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो हमें अल्लाह को देने हैं, जैसे अल्लाह की धरती पे हम रहते हैं, अल्लाह की हवा पानी को इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के अनाज को हम खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ये तो अल्लाह का हक है। दूसरे बंदों के भी हुकूक ये हैं कि जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं, उसके बहुत सारे हुकूक होते हैं जो हमें देना चाहिए, और देना हमें इस वजह से चाहिए कि हमारा मजहब सिखाता है। अब आप देखिए इतनी बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है कि तुम्हारा जो पड़ोसी है, अगर वो तकलीफ में है, वो भूखा है, प्यासा है, उसके पास कपड़ा नहीं है, और तुम बड़े सुकून से जो है खा पी रहे हो, उसका ख्याल नहीं कर रहे हो, तो तुम नाम के सिर्फ मुसलमान हो, दुनिया के रजिस्टर में तो तुम मुसलमान कहे जा सकते हो, अल्लाह की निगाह में तुम मुसलमान नहीं हो। माँ बाप के हुकूक हैं, अपने भाई बहनों के हुकूक हैं, बहुत सारे हुकूक हैं। इसी का प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं ताकि लोग हुकूक को समझें, इनको कि क्या करना है दुनिया के अंदर। कुरान में आया है और इस्लाम में भी है कि जब आपके माँ बाप वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ तलक न पहुँचे। लेकिन आज वालिदैन के साथ जो सलूक औलादें कर रही हैं, बहुत अजीब अलविया है और बहुत अफसोसनाक जो है पहलू है ये कि लोग वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। जी बेशक बेशक, उसकी वजह यही है कि जिस चीज़ को वो मानने का दावा कर रहे हैं, उसकी टीचिंग वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है वो असल चीज़। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सब चीज़ है क्या जिसके लिए हम दुनिया में भेजे गए हैं। अल्लाह के रसूल ने एक माँ बाप के लिए क्या हमारे लिए गाइडलाइन रखी है। कुरान मजीद में अभी आपने कहा कि ये कहा गया कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, यानी उनको उफ भी मत करो। जैसे हम लोग अरे या उनके सामने असहमति कर देना या ऊंची आवाज़ में बात कर लेना, यहाँ तक से भी मना किया गया हमको। ये सब चीज़ें जो है, अब जाहिर सी बात एक मुसलमान जब इन गाइडलाइन को फॉलो करेगा तो कभी अपने माँ बाप के लिए ये रवैया उसका नहीं होगा, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे और आइडियल बच्चे की शक्ल में दुनिया के अंदर वो रहेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मुस्लिम मुआशरे में भी माँ बाप के हालात अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूँ ये बात कि एक बार एक सहाबी उसको कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपेनियन है, साथ में जो रहा है, वो आके अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मैंने उनको जो है कंधे पे बैठा करके, अपने कंधे पे बैठा करके हज कराया है, क्या मैंने माँ का कुछ हक अदा किया है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि काम तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो हक की तुमने बात किया है, तुमको जिस वक्त वो पैदा कर रही थी, न जाने कितनी चीख मार के तुमको पैदा की, उसके एक चीख का भी तुमने बदला नहीं चुकाया है अब तक। माँ बाप का एहसान इतना है, ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद अगर हम पे किसी का एहसान इस प्लेनेट पे है तो माँ बाप का है। जाहिर सी बात है, एक सच्चा पक्का मुसलमान कभी अपने माँ बाप के लिए रूड नहीं हो सकता, अपने माँ बाप के लिए गलत नहीं हो सकता, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे वो हमेशा खरा उतरेगा अगर वो मुसलमान है तो। इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या चाहता है हमसे, और इस्लाम का पैगाम क्या है, ये जरा आप बताएं। इस्लाम का मतलब ही है कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना, जिसने आपको बनाया है उसके हवाले अपने आप को कर देना। देखिए शमीम साहब, हमने अपने आप को नहीं बनाया है, एक बात तो बहुत क्लियर कर लीजिए, ये अल्लाह ने हमको बनाया है। कहाँ उसको पैदा करना था, किस इन्वायरमेंट में पैदा करना था, उसने हमको पैदा कर दिया। अब दुनिया में रहना क्या है, किस है, वही गाइडलाइन देगा। इस्लाम एक गाइडलाइन है, वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। इस्लाम इसके अलावा कुछ नहीं है। इस्लाम क्या करना है ये बताता है, क्या नहीं करना है ये बताता है। इसमें जो डूज एंड डोंट्स है ना, बहुत क्लियर है, आपको मिलेंगे कि अगर आप बेटे हैं तो बेटे की हैसियत से कैसे रहना है, माँ बाप है तो माँ बाप की हैसियत से क्या रहना है, एक पड़ोसी आपका है तो उस पड़ोसी के हिसाब से आपको कैसे रहना है, एक समाज में आप रहते हैं उस समाज के हिसाब से आपको कैसे रहना है, ये पूरी गाइडलाइन मौजूद है। इस्लाम पूरा एक मुकम्मल निज़ाम है, जो निज़ाम जो है दुनिया को, अगर दुनिया इसको फॉलो कर ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अमन सुकून के साथ दुनिया गुजारी जा सकती है। हमारे मज़हब में तो है कि समाजी इंसाफ किया जाए, लेकिन अगर इंसाफ नहीं हो रहा है समाजी तौर पर
اور भेदभाव हो रहा है, ऊंच नीच है या तासुब है, नफरत है, तो इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार तो कौन? जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल वो उसके जिम्मेदार हैं। जो कह रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो बस जबान से कह रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली वो जो है वो उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जो है समाज के अंदर। वरना एक मुसलमान कभी भी, क्योंकि मुसलमान को तो अल्लाह ने गाइडलाइन दिया है कि हम पूरे इंसानियत को, सिर्फ मुसलमान तो छोड़िए, गैर मुस्लिम है, काले हो, गोरे हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दुनिया के किसी रिमोट से रिमोट एरिया में रहने वाले हैं, सबको कुरान कह रहा है कि एक माँ बाप की औलाद है। तो जाहिर सी बात है, एक माँ बाप की औलाद में डिस्क्रिमिनेशन कैसा हो सकता है, भेदभाव कैसे हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, ये कहीं से गुंजाइश इसकी नहीं। तो इस्लाम का पैगाम, जो संदेश हमको दुनिया के सामने पहुंचाना चाहिए, जो उससे उसकी जो शिक्षाएं हैं, जो तालीमात है, जो पहुंचाना चाहिए, क्या हमने उसको नहीं पहुंचाया? इसलिए इस्लाम के बारे में अगर मुस्लिम वो जानते नहीं हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। जी ये मैं इसमें हमारी बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी गफलत हमारी है। लेकिन ये दीन जिसको आप मानते हैं, ये दीन की सही छवि दूसरों को पता हो, इसको तो बताना ही आपको चाहिए। इसमें तो गफलत हमसे हुई है, बिलाशुबा हुई है। जबान से भी हमने नहीं बताया, अमल से नहीं बताया। जबान से बता भी रहे तो अमल से हम नहीं बता रहे। हमें अमल से बताना बहुत जरूरी है ताकि आस पड़ोस हर जगह ये पता हो कि मुसलमान ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली हम ये बताने में असफल हो गए हैं, नहीं बता पाए हैं कि मुसलमान की एक आइडेंटिटी क्या है, एक पहचान क्या है। अब वो ये समझता है कोई गैर मुस्लिम कि मुसलमान उसको कहते हैं जो नमाज सिर्फ पढ़ता है, जो रोजा रखता है, जो हज पे चला जाता है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। एक मुसलमान हर वक्त इंट्रोडक्शन देता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे शमीम साहब कह रहा हूँ कि हम इसमें असफल रहे हैं। अब तक कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को मानने वाले इसका परिचय सही ढंग से दिखाएं और दें ताकि लोगों को इस्लाम की तरफ को अट्रैक्ट होने में, उसको समझने में जो आसानी हो जाए। आप जब समाज के अंदर रहते हैं ना मेरे भाई, तो आप ये नहीं देखते थे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन क्या है, कौन कहाँ का है। उसको सामने वाले को आपको ट्रीट करना है कि वो एज ए हैसियत मुसलमान नहीं, एक इंसान की हैसियत से ट्रीट करना है। एक हिंदू की हैसियत से नहीं ट्रीट करना है हमको, एक इंसान की हैसियत से ट्रीट करना है। ये सबको चाहिए कि इंसान को सिर्फ इंसान समझे। ये समझ हम कभी प्लेन पे बैठते हैं तो वहां से हम देखते हैं नीचे ना, तो छोटे छोटे इंसान नजर आते हैं, तो वहां सिर्फ इंसान हमको दिखते हैं। तो इंसानों को बहुत ऊंचाई से देखना चाहिए, हमारा मानना है। हाँ, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आपके धर्म अलग हो सकते हैं, आपके रहन सहन अलग हो सकते हैं, ये बातें अलग हैं, लेकिन बहैसियत इंसान उसकी डिग्निटी को बाकी रखना चाहिए, उसका सम्मान करते रहना चाहिए, उसको इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारा नदीम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।